Hello everyone. I hope you all are strictly following the rules of quarantine. So stay safe and take advantage of this time and do more and more study. Uh, Today's topic is the transportation in human beings. Transportation means movement of substances from the one place to the another place, but here is not about the place because we are talking about the human beings. That means the in the whole body, how can we transport the digested and absorbed food and the oxygen? Okay, we will discuss this topic in this lecture. Now the component of circulatory system. See, there are three components of the circulatory system: blood, blood vessels, and heart. Actually, every system consists of the many organs or and many components. So there are three components to complete the circulatory system. Clear? Firstly, we will study about the blood. Okay, blood is the fluid connective tissue. It is the largest tissue which is found in our body. तो ये सबसे बड़ा टिश्यू है एंड दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. क्लियर? नाउ the components of blood. See, blood consists of the many components. Blood actually made up of the plasma and cells, can say cellular elements also. And ये दो में अगर आप डिवाइड ना भी करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज cellular elements. Clear? तो plasma is the at least 45 to 50%, and similarly here cells are also 40 to 45%. Clear? Plasma जो होता है it's made up of the organic constituents and inorganic constituents. Organic constituents such as such as water. Basically 90% of the water contained by the plasma and only 10% of salts. Salts हो गया, आपके proteins हो गए, are contained by the inorganic constituents. Cells are corpuscles here. They are the erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. Clear? तीन टाइप के cells होती हैं यहाँ पर. And the leukocytes are basically of two type, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes थ्री टाइप के हो गए, eosinophils, basophils and neutrophils, and agranulocytes, lymphocytes and monocytes. ये जो आपका लास्ट का जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको जस्ट बता रही हूँ. ये एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो सेल्स होती हैं आपकी, यानी कि जो कार्पोसेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं. इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ लेंगे. Clear? Granulocytes, if cytoplasm is present in the granules, that's why then they are called granulocytes. If granules are absent in the cytoplasm, so that they are called agranulocytes. Clear? Rest of आपके syllabus में अभी वो नहीं है. Okay. So these are the component. The fluid medium is the plasma, अभी आपको बताया, and the RBC, WBC and platelets. ये सब suspended होते हैं प्लाज्मा में. Clear? जब आपने देखा होगा कई बार आपको चोट लग जाती है तो जब कट होता है तो जो इंजर्ड पार्ट से आपका ब्लड निकलता है तो वहाँ पर आपका सब कुछ, यानी कि प्लाज्मा एंड द आरबीसी एंड द डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ऑल दी कंटेंट इज विल बी देयर. क्लियर? प्लाज्मा का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट. क्लियर? तो मैंने अभी बताया था हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो फूड है, ऑक्सीजन है, जो भी गैसेस हमारी बॉडी में है, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पार्ट कंटेन करता है. क्लियर? ओके, नाउ कम टू दी फंक्शंस ऑफ द ब्लड. हमारा जो ब्लड है उसका क्या फंक्शन है? तो बेसिकली क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो इसमें सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का ही है. तो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस, हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इवन द नेक्स्ट वन इज दी, हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होती हैं, तो यानी कि वो डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम करता है. यानी कि जो भी एक इन्फेक्शन, कोई भी एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी में आ जाती, सॉरी एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है, तो एंटीजन मीन्स एनी दी फॉरेन सब्सटेंस, एनी जर्म, इट कैन बी एनी जर्म, बैक्टीरिया, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं. जो भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ रहा है उसको किल करने के लिए वी आर हैविंग दी डब्ल्यूबीसीज. तो डिफेंस अगेंस्ट दी इन्फेक्शन. क्लियर? Now next topic is the difference between RBC, WBC and platelets. See, RBC is called erythrocytes, WBC is called leukocytes and platelets are called the thrombocytes. Clear? तो इनका जो ओरिजिन होता है, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, वो रेड बोन मैरो में होता है. क्लियर? बोन मैरो जो हमारा बोन के अंदर का फ्लूइड होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं. क्लियर? ल्यूकोसाइट्स हमारे लिम्फ नोड एंड स्प्लीन से होते हैं. लिम्फ नोड्स ये हमारे आर्म पिट्स में होते हैं, लिम्फ नोड. क्लियर? वेरियस बॉडी पार्ट्स में होते हैं ये.
और स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, तो वहाँ पर आपके ल्यूकोसाइट्स ओरिजिन होते हैं। प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, यानी कि ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों ही हमारे बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। नाउ दी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि कितने टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स जो है वो 120 डेज सर्वाइव करते हैं, ल्यूकोसाइट्स 13 से 20 डेज सर्वाइव करेंगे, और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 5 to 9 डेज सर्वाइव करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड एंड नॉन न्यूक्लियोइड, यानी कि किसके पास न्यूक्लियस होता है और किसके पास नहीं होता। एरिथ्रियोसाइट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो इमेच्योर कंडीशन में था तब उसके पास न्यूक्लियस होता था। लेकिन जैसे ही कैन से कि when the erythrocytes are in the immature condition they are having the nucleus, but as soon they get mature nucleus will get disappear. Clear. एंड दी ल्यूकोसाइट्स जो हैं आपके, उनके पास तो ऑफकोर्स सी बात है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दे आर दी एमीबॉइड शेप। एंड जो प्लेटलेट्स होते हैं आपके, उनके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इरिथ्रियोसाइट्स बाइकॉनकेव शेप के हैं, ल्यूकोसाइट्स आपके इरेगुलर शेप के हैं, और प्लेटलेट्स भी इरेगुलर एंड कुछ सर्कुलर शेप के होते हैं। काउंट की बात करें अगर हम, तो 5 से 5 मिलियन आपके इरिथ्रियोसाइट्स, 6000 से 8000 आपके ल्यूकोसाइट्स, और 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक क्या होते हैं आपके प्लेटलेट्स होते हैं। कलर ऑफकोर्स एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन, यानी कि दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, वो प्रेजेंट है। ल्यूकोसाइट्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं है, तो दे आर कलरलेस। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो सम ऑफ कलरलेस एंड सम आर ऑफ द पर्पल कलर। टाइप की बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स एक सिंगल टाइप, अपने आप में आरबीसी एक ही है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। क्लियर। एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपके, ऑफकोर्स एक टाइप के ही होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दी ब्लड वेसल्स। तो दिन मैंने सिस्टम की बात करी थी, तो सिस्टम का पहला कंपोनेंट था ब्लड, हमने उसे पढ़ लिया। दूसरा कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। क्लियर। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, किसके थ्रू ब्लड जाएगा, वो होगा आपका ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो किसी चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे, आइदर सम कंटेनर यू विल यूज, और दी पाइप। अगर हम पाइप का एग्जाम्पल ही ले लें सिर्फ, तो पाइप के थ्रू जैसे जा रहा है, तो सिमिलरली पाइप के थ्रू ही हमारी बॉडी में ब्लड भी जा रहा है, तो जो पाइप है उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं हमारी, वो थिक वॉल्ड होती हैं, बहुत मोटी होती हैं, एंड डीप सीटेड होती हैं, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि अगर ऊपर होंगे और हम रन करेंगे तो आपकी आर्टरीज बस्ट भी हो सकती हैं। इसलिए डीप सीटेड यानी कि बहुत अंदर होती हैं, हमें इजीली विजिबल नहीं होती। जो आपको बाहर दिखाई देती हैं, जो आपको बाहर इजीली सुपरफिशियली दिख रही हैं, दे आर दी वेन्स। क्लियर। जो आपको ब्लू कलर की अपने हाथ में दिख रही होंगी, वो वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सीटेड है, और ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से। तो हार्ट से ऑर्गन्स तक जो भी ब्लड जा रहा है, वो सब कौन करता है, आर्टरीज। और ऑर्गन से दोबारा जो ब्लड हार्ट तक आ रहा है, वो वेन्स लेके आती हैं। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। कौन सी, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी, वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर। वॉल्व जो होती है इनमें एब्सेंट होती है, क्योंकि इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉल्व का फंक्शन होता है कि इट प्रिवेंट फ्रॉम दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे अगर आपने पानी ट्रांसफर किया ये आपने पाइप से, तो वो बैक फ्लो आ सकता है अगर वो बहुत स्लो स्पीड में है, लेकिन अगर बहुत प्रेशर के साथ है तो वो बैक फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है आपका वेन्स। थिन वॉल है, सुपरफिशियल है, और ब्लड कैरी करती हैं टू दी हार्ट की तरफ ले जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, और वॉल्व इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्योंकि ब्लड का मोशन जो है वो स्लो है। क्लियर। कल हम इनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, आज इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।